So from certs, come to the sixth sum. Question is simplified. Please mute everyone. Question is simplified. Look at the first question. 5 root 3 plus 8 root 3. Now, can the addition be possible over here? If you remember last lecture itself, I have discussed about this. That addition कब possible होएगा? Yes, please. Addition कब possible होगा? When there is The roots are reconciled. नहीं. When they are like terms. Like terms. Remember the word like terms. We have done that before. दोनों का irrational term same रहेगा ना, उसको बोलते हैं like terms. Okay. So look at these two terms. They are like terms. So यानी addition possible है. So addition का rule क्या है? We can remove root 3 common. 5 plus 8. And how much is 5 plus 8? 5 13. plus 13. ठीक है. So root 3 कॉमन निकालते हैं. 5 plus 8 is 13. 13 root 3. अब ये डायरेक्ट यहाँ से अपन यही स्टेप में जा सकते हैं. ये सिर्फ फर्स्ट सम है, इसके लिए तुमको बता रहा हूँ एक्चुअल स्टेप्स क्या आता है. Is this clear? Yes, sir. समझ में आ गया? Okay, come to the next one. Yes, sir. उसी का सेकंड सम पे आ जाओ. 9 root 5 minus 4 root 5 plus square root of 125. Now, the first thing that you need to do is there a simplification possible over here? अगर यहाँ इसको simplify कर सकते हैं तो पहला स्टेप वही करने का, simplify करना है. So let's try simplify this. ये already simplified है, root 5 है. ये पहले से simplify, इससे ज्यादा simplify नहीं हो सकता. Next, minus 4 root 5, ये भी simplified है. Plus root of 125, इसको simplify कर सकते हैं, यानी इसका factors find out करना है. So what are the factors of 125? 5 into 5 into 5. 5 into 5. Order is 2. कुछ नहीं लिखा है तो order 2 होता है, यानी 2 सेम नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करो, एक बाहर आएगा. Your answer will become 9 root 5 minus 4 root 5 plus ये दो 5 root 5. एक 5 बाहर आएगा और ये जो एक 5 है वो अंदर ही रहेगा. Now we can do addition subtraction if they are like terms. So look at this and tell me, are these like terms? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कैसे sir. पता चला like terms है? सबका irrational term same है. Term same है. So now let's start with addition subtraction. 9 minus 4. कितना होगा? 5. 5 plus 5. 10. 9 minus 4 is 5 plus 5 becomes 10. So answer is 10 root 5. ये डायरेक्टली मैंने बता दिया है. तुमको डायरेक्टली जमता है तो अच्छी बात है, नहीं जमेगा तो तुमको इस तरह से करना है. रूट 5 कॉमन निकाला है. 9 minus 4 plus 5. So answer becomes 10 root 5. तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो या फिर ये स्टेप कर सकते हो. ठीक है. आई होप स्क्रीन क्लियरली. 7 root 48 plus root 27 minus root 3. My first job will be whether I need to simplify this. ये 48 I can simplify this. 27 I can simplify this. Root 3 पहले से simplified है. ठीक है. So let us find the factors of this 7. Root 48. 48 का factors ढूंढो. 48 का factors बताओ. ठीक है. Now 48 का factors तुम लोग 4 4 ऐसा कर सकते हो. ठीक है. मैं सबसे छोटा वाला फैक्टर से कर रहा हूँ. 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1. ये 48 का फैक्टर्स लिखा. This is 48 का फैक्टर. Now just put that over here. 2 into 2 into 2 into 2 into 3. तुम इसके अलावा और एक कैसे लिख सकते थे पता है? 4 into 4 into 3. ये भी तुम लिख सकते हो. ठीक है. मैंने सबसे छोटा फैक्टर लिखा है अभी. 27 का फैक्टर्स. 27 का फैक्टर्स इजी है. 3 से डिवाइड किया तो 3 into 3 into 3. 3 into 3 into 3. minus 3 into 3 into 3. yes. Okay. Now let's draw the line over here. दो 2 में से दो 2 का लाइन ड्रॉ किया. यहाँ पर भी दो 2 है, ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया because order is 2. Notice it.
इधर ऑर्डर है, कुछ नहीं लिखा है तो ऑर्डर 2 होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये ऑर्डर है क्या? No, sir. No, इसको क्या sir. बोलते हैं? Rational What number. is this? Rational number. Rational number. Rational number. ये दो 3 के नीचे लाइन मारा, 7 पहले से बाहर है, ये दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ये दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? √3। सेम वे प्लस, ये दो 3 में से एक 3 बाहर, अंदर बचा √3 माइनस √3। ठीक है, 7 4 28 √3 प्लस 3 √3 माइनस √3। आंसर बिकम्स, अभी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऑल दीज आर लाइक टर्म्स, सबके सब लाइक टर्म्स है, सो एडिशन सबट्रैक्शन इज पॉसिबल। 28 प्लस 3 बिकम्स 31, 31. 31 माइनस 1, कुछ नहीं लिखा तो इधर 1 है, 31 माइनस 1, 30. 30. 30 √3, that's your answer. Clear? This is your first answer, second, third. Let's continue. Please mute करो। निधि, तुम्हारे यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, Sir. बोलो। जस्ट अ करेक्शन, यहाँ पे माइनस साइन है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस है। लेट्स डू दी फाइनल आंसर। सब √3 है, 28 माइनस 3 becomes 25 minus 1, 25 minus 1 becomes, 24. so please do this correction, 24 √3, okay? 147 का फैक्टर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, वापस 7 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड हुआ 1, 3 1. so factors are 7 into 7 into 3, 192. Let's do the factors of 192. 192 का फैक्टर्स करेंगे तो 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं बड़े नंबर से कर रहा हूँ, वो तुम्हारा चॉइस है, छोटे से करना है कि बड़े से करना है डिवाइड। ठीक है, मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 2 जा 16 बचा 3, 8 4 जा 32, फिर वापस मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 3 जा 24, 3 1। सो 192 का फैक्टर्स आएगा 8 into 8 into 3। मेरे को वो फैक्टर का हिंट कहाँ से मिला पता है? कि 8 से डिवाइड होएगा, वो इधर से मिला मुझे। ठीक है, नाउ 75 का फैक्टर्स, 75 का फैक्टर पहले किससे डिवाइड करते हैं? 5 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 3 1 जा। Factors are 5 into 5 into 3. Now, let's draw the line over here. दो 7 के नीचे लाइन ड्रॉ किया, तो दो 7 में से एक 7 बार, √3 अंदर, 3 बाय 2 8 में से एक 8 बार, √3 अंदर, दो 5 में से एक 5 बाहर, √3 अंदर। ठीक है, clear? Now, Yes, sir. can this 7 gets cancelled? Is there a possibility कि ये 7 cancel हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. because ये Yes, sir. न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। अगर ये ऐसे लिखा होता ना, तो मैं इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? प्लस या माइनस। बट बीच में अगर मल्टीप्लाई साइन रहेगा, then division or cancellation is possible. Is this clear to you, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So उसका मीनिंग ये 7 कैंसिल हो गया, so this becomes 4 √3 3 √3 1 √3, 4 plus 3 7 7 minus 1 √3. 6 √3. Whenever you put a root sign, please make sure कि वो रूट है ना पूरा डालो। कोई लोग ऐसे रूट लिखते हैं, कोई लोग ऐसे रूट लिखते हैं। ठीक है,
ये ऐसे वाला रूट साइन कभी मत डालना, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इसके आगे तुम्हारा रैशनल टर्म रैशनल है कि ऑर्डर है, कंफ्यूजन होता है। याद रखना, टेस्ट में भी अगर ये कंफ्यूजन आना सीधा 0 मिलेगा। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद टीचर, नहीं सर मैंने तो रैशनल लिखा था, आपने उसको सर्ट समझ लिया। ठीक है, इसके लिए रैशनल और ऑर्डर सेपरेट करने के लिए ये रूट साइन ऐसे पूरा डालो, तो वो पूरा पार्टीशन हो जाएगा कि हाँ ये रैशनल टर्म में क्लियर हो गया, और अगर इधर कुछ लिखा है तो ये ऑर्डर हो गया। फर्क समझ में आ गया? इसलिए रूट साइन पूरा डालने का आदत रखो, आधा रूट साइन मत डालना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आधा प्रिंट होएगा, ठीक है, पर हमारे टीचर्स को अगर कभी कंफ्यूजन हो गया तो तुम्हारा अननेसेसरी मार्क्स जा सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट, रूट साइन कैसे डालना है। नाउ once again similar है, so please help me with this, easy है। yes please, 12 का फैक्टर्स जल्दी बोलो। 2 into मैंने 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 2 3, into 2 into 3. 75 का फैक्टर्स 48 का फैक्टर्स। अभी 4 से करो, अब 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड किया तो 12 आता है, 4 से डिवाइड किया तो 3 आता है। लास्ट टाइम मैंने 2 into 2 into वाला दिखाया था, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ लाइन ड्रॉ करो। ऑर्डर 2 है तो 2 सेम नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करो। ऑर्डर 2 है, 2 सेम नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करो। ऑर्डर 2 है, 2 सेम नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करो। ये 2 2 में से एक 2 बार √3, ये 2 5 में से एक 5 बार √3, ये 2 4 में से एक 4 बाहर √3। अब ये रैशनल टर्म्स मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज 8 √3 5 √3 28 root 3. All of these are like terms. Because they are like terms, addition subtraction is possible. 8 minus 5, 8 and minus 5 becomes 3 3. plus 3, greater का साइन आएगा। 8 minus 5 is plus 3, 3 minus 28 25. Minus Minus 25. 25. बराबर है ये? 25 √3. क्या मिस्टेक है? Minus का sign. ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज कॉल्ड एज सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं कि तुमको रूल मालूम नहीं है कि ग्रेटर का साइन आता है, तुमको मालूम है पर तुम लोग डालते वक्त भूल जाते हो। ठीक है, तो आंसर ये 8 minus 5 is 3 √3 minus 28 √3. 3 minus 28 becomes minus 25 √3. ये माइनस साइन क्यों आया? ग्रेटर का साइन आया। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. जॉब करना है, तुमको मल्टीप्लाई भी करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ओके, क्लियरली दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट्स टेक द फर्स्ट वन, सिंपल सम है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 √12 into root of 80. Now, the multiplication method goes, multiply the rational term to the rational term and multiply the irrational term to the irrational term. Irrational to irrational का multiplication is possible only when their orders are same. What do you mean by that? ये rational term है 3 दिखा। वैसे इधर rational term कौन सा है? 1. 1. 3 into 1 3. मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई रैशनल टू रैशनल, 3 into 1 3. मल्टीप्लाई इरैशनल टू इरैशनल, बट इरैशनल टू इरैशनल मल्टीप्लिकेशन में एक चीज का ध्यान देने का है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर्स आर सेम। लुक एट दिस ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ओवर हियर? 2. व्हाट इज द ऑर्डर ओवर हियर? 2. वो सेम है, यानी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर ऑर्डर अलग रहा ना तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता।
unless I make the order same. Unless I make this order same. So now here, the order is 2, order is 2. The order is common. Now multiply the terms inside. Is this clear? ये फर्स्ट सम इसलिए इतना स्लोली बता रहा हूँ, समझ में आ गया? Yes, sir. Rational to rational, irrational to irrational. Irrational to irrational multiplication is possible when the order is same. Now, don't waste your time in multiplication because question is multiply and simplify. Multiply भी बोला है, simplify भी बोला है, तो क्यों multiply करने में time waste कर रहे हो? उससे अच्छा सीधा factors ढूंढो, क्योंकि simplify करना ही है ना. So why you waste your time in multiplication? 12 का factors 2 into 2 into 3. 18 का factors 2 9s are 18. 9 यानी 3 into 3. 3 into 3. ठीक है? Now order is 2. दो same number के नीचे line draw करो. 2 into 2. दो same number के नीचे line draw करो. 3 into 2. बराबर है? No, sir. No, sir. Next 3 into 3. अब बाहर निकालो. पहले से 3 बाहर है. Out of these 2 एक 2 बाहर आएगा. Out of these 2 3s एक 3 बाहर आएगा. अंदर क्या बचा? 3 2s are 6. 3 into 6. 3 2s are 6. 9 2s are 18. 18 2 6. ठीक है? ये फर्स्ट सम था इसलिए इतना स्लोली गया और समझ में आने के तक. Okay, now come to the next one, second one. Now, look at this question. Tell me, what's the first step? क्या बोला था step मैंने? Multiply rational term to rational term. Rational. Two rational. So answer बोलो. 3 into 7. 3 into 7. Answer बोलो. Multiply rational. 3 into 7 यानी 21. 21. अब irrational to irrational. Root 12 into root 15 यानी root of 12 into 15. 12 into 15. अब मल्टीप्लाई मत करना, फैक्टर्स निकालना. 12 का फैक्टर्स 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 15 का फैक्टर्स 5 into 5 into 3. 3 into 5. 3 into 5. ठीक है, लाइन मारो. 2 into 2 लाइन मारा, 3 into 3 लाइन मारा. 2 3. पहले से 21 बाहर है, 2 में से एक 2 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, इनसाइड इल root 5. This becomes 6. 126. 126 root 5. So we have not only multiplied, but we have also simplified it. Okay, so thirds. First law. Nth root A into nth root B. If the order is same, we can multiply the term inside. समझ में आ गया first law? ये first law clear हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Second law. Yes, sir. Nth root A into n divided by nth root B. If the order is same, I can multiply the term inside. Same way, if the order is same, I can divide the terms. So I will get nth root A upon B. So if the order is same, I can multiply the term inside. Same way, if the order is same, I can divide it. Third, nth root A. If this is nth root A. So now we'll be multiplying these two. So m और n multiply हो जाएगा, यानी क्या आएगा आंसर? m into n Amen. root A. m into n root A. ठीक है, गरर म्यूट करके रखो. Now, if the order is same, we can multiply the term inside. Order is same, we can divide it. Here, if this is mth root A, हम लोगों ने indices का रूल अप्लाई किया, m और n multiply हो जाता है, mn root A.
ठीक है, नेक्स्ट nth रूट a का रेस टू n. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉ. ये लॉ अपने को आगे बहुत काम आने वाला है. nth रूट a का रेस टू n, which can also be written as nth root a का रेस टू n. वो रेस टू n बाहर हो या वो रेस टू n अंदर हो. Now what is the answer of this? Now to get the answer of it, in 8th standard you have learnt that cube root of 5 का मीनिंग होता है 5 raised to 1/3. याद है तुमने 8th में ये पढ़ा था, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3. Yes, sir. Yes, sir. वैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा रहेगा तो क्या लिखते हैं अपन आंसर? 5 raised to 1/2. 1/2. और फोर्थ रूट ऑफ 5 लिखा रहेगा तो 5 raised to 1/4. 5 raised to 1/4. ठीक है. सो क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, फोर्थ रूट का मतलब 1/4. तो nth रूट का मतलब क्या हो गया? 1/n. 1/n. 1/. ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब तुम लोग मुझे खुद आंसर बताओ. ये nth रूट a का रेस टू n है, क्या आंसर आएगा? 1/n. 1/n. nth root 1/n. आगे बोलो, आगे सोचो. a रेस टू 1/n तो मैंने बताया, उसके आगे तुम दिमाग लगाओ. nth रूट a का मतलब a रेस टू 1/n और ये पहले से n इधर है. N/n. N upon N. 1 ये upon N रेस टू n है square. ना? 1/n 1 square. upon N square. हाँ, चुप रहो. ये n है ना रेस टू, वही रेस टू n इधर आया. नोटिस करो क्या होने वाला है. ये n और ये n कैंसिल हो गया. कैसे? ये 1/n है और ये मल्टीप्लाई बाय n है. ये 1/n है और मल्टीप्लाई बाय n है, तो दोनों n कैंसिल हो गया. तो बचा क्या? a रेस टू 1. a रेस टू 1 का मतलब होता है a. सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. वापस एक बार. nth रूट a का मतलब होता है a रेस टू 1/n. बाहर क्या है? रेस टू n. क्लियर हो गया? यानी a रेस टू 1/n मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय n. ये इंडेक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है. हाँ? तो n और n कैंसिल हो गया. बचा क्या? a रेस टू 1, यानी आंसर इज a. समझा? Yes, sir. अब इसको लिखने का दो तरीका है. nth रूट का रेस टू n बाहर हो सकता है और आइदर nth रूट का रेस टू n इट कैन बी इनसाइड. Either this raised to n is outside or either it is inside. In both cases the answer is going to be A. Why? Because ये nth root और ये n cancel हो जाएगा. nth root और raised to cancel होता है. nth root और raised to n cancel होता है. So answer is the term inside. So the shortest way to remember is nth root का raised to n है तो answer is the term inside. nth root का raised to n है, answer is the term inside. So for example, if I write cube root of 5 का whole cube, what is the answer? 5. 5. 5. Term inside यानी 5. फोर्थ रूट का रेज टू 4, 5. 5. the term inside 5. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल्स Yes. लिख के दे रहा हूं तुमको कैसे क्लियर अंडरस्टैंड करना है. आंसर बोलो. 3. nth रूट का रेज टू n है, वो रेज टू n इनसाइड है, चलेगा. आउटसाइड रहे या इनसाइड रहे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आंसर इज द टर्म इनसाइड. द टर्म इनसाइड इज 3. 3. ठीक है. 3. Yes, sir. आंसर बोलो. 3 आएगा? No, sir. No, No, sir. sir. नहीं आएगा. इसका एक्चुअली सोल्यूशन पॉसिबल है पर अभी हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे. समझ में आया? तो ये ऑर्डर और पावर सेम होना चाहिए तो सॉल्व होता है. ठीक है. ओके, सो हियर वी हैव लर्नड 4 लॉस. उसमें से ये 2 लॉस तो अभी हम लोग ऑलरेडी यूज करना चालू कर दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में. ठीक है. ये वाला लॉ का डिस्कशन हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं. यही लॉ नया है जो आगे जाके डिस्कस होगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा. ठीक है. प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर तक जाएगा ये लॉ. ओके. तो अपने लिए अभी करंटली ये 2 लॉ अपने को अप्लाई करना है.
लेट्स स्टार्ट, प्लीज कंटिन्यू। अभी अपने मल्टीप्लाई में ऑलरेडी किया हुआ है, विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। चलो अब 8th सम पे आ जाओ। 8th का फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। अभी हमने डिस्कस किया सेकेंड लॉ में मैं डिवाइड कब कर सकता हूं? When the order When is can I When the divide? order is Order is same. same. Order is 2, order is 2, so दोनों का order same है, so I can divide. This is 98 divided by 2, check करो, ठीक है? Now I can cancel this, 2 cancel हो गया, ये 49 आया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 49 का स्क्वायर रूट यानी 7 into 7, 7 into 7. दो 7 के नीचे लाइन ड्रॉ किया, ऑर्डर इज 2, दो 7 के नीचे लाइन ड्रॉ किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दो 7 में से एक 7 बाहर, अंदर कुछ बचेगा क्या? No, sir. अंदर कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, सो दैट No, इज 7 sir. इज योर आंसर। वैसे भी स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो 7 ही होता है ना, स्क्वायर Yes. रूट ऑफ 49 इज 7, ओके। नेक्स्ट वन, square root of 125 divided by root 50. Okay, let's continue. Square root of 125 divided by root 50. Once again, their orders are same. In the root of 125 upon 50. Root of cancellation, 5 tens are 5 25s are 5 2s are 5 5s are. So what is your answer? Root of 5 upon 2. बस अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इतना ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? Yes. Yes. ओके, उसी का थर्ड देखो, रूट ऑफ 54 डिवाइड बाय रूट ऑफ 27। दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है यानी 54 डिवाइड बाय 27, 27 2 जा 54 होता है, यानी आंसर क्या आ गया? Root 2. ये आगे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। 3/4 रूट 8 का फैक्टर्स बताओ। 2 into 2 into 2 into 2. बिकॉज द ऑर्डर इज 2, बिकॉज द ऑर्डर इज 2, तो दो 2 के नीचे लाइन ड्रॉ किया, एक तो बाहर आ गया, रूट 2। नाउ डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 2s are, so answer is 3/2 रूट। ठीक है, वो तुम्हें एक लाइन में लिखो या ऐसे वर्टिकली लिखो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तुम्हारा चॉइस। नेक्स्ट 5/9 रूट 45। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स हियर। 5/9 45 का फैक्टर्स 5 into 3 into 3. 5 into 3 into 3. वेरी गुड। 5 into पहले 3 से डिवाइड किया तो 15, 5 फिर 3 से डिवाइड किया तो 5, फिर 5। ठीक है, तुमको ऐसे नहीं जम रहा है ना, तो तुम पहले फैक्टर निकालना, ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस है। ऑर्डर 2 है, दो 3 के नीचे लाइन ड्रॉ किया, ऑलरेडी 5/9, दो 3 में से एक 3 बाहर, रूट 5। सर आगे माइनस साइन है। Okay, now एक 3 cancel था, 3 1s are 3 3s are, so the answer becomes minus 5/3। 3 cancel किया है, 3 1s are 3 3s are, minus 5/3 root 5। Okay, that is simply different here. Question written is, write the simplest form of rationalizing factor for the given search. You have to write the simplest rationalizing factor of this given search. Now, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। 32 का फैक्टर्स 2 से डिवाइड किया तो 16, 2 से डिवाइड किया तो 8,
2 से डिवाइड किया तो 4, 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 से डिवाइड किया तो 1। ये मैंने सारे फैक्टर्स लिखे, समझ में आ गया अच्छी बात, नहीं तो पूरा फैक्टर्स लिखे। ऑर्डर इज 2, 2 into 2, 2 into 2, यानी 8 2 बार 8 2 बार, अंदर बचा √2, 2 into 2 becomes 4 √2। 4 root 2. सिंप्लीफाई हो गया, Yes. सिंप्लीफाई हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, बेसिक ट्रिक वाइज तो बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आस्क्ड इज व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, मींस मेरे को इसको, ये इरैशनल है, ये इरैशनल को रैशनलाइज बनाने का है। अब ये इरैशनल को रैशनलाइज बनाने के लिए ये 4 ऑलरेडी रैशनल है, तो इसको छेड़ने का नहीं, ठीक है। ये पहले से रैशनल है, ये और इसको क्या रैशनलाइज और करोगे, इसको रैशनलाइज नहीं करना है, तुमको इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि ये इरैशनल है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए तुम क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर। ओके, ना हाउ विल आई कम टू नो कि इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनलाइज होएगा, इसको तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये रैशनलाइज होगा। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, समझो √5 है, तुमको इसको रैशनलाइज करना है, तो तुम इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे। समझो तुमने इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 15 होता है, वो रैशनल नहीं हुआ। तुमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 होता है, वो रैशनल नहीं हुआ। तुमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 into 5 25 होता है, 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय द वे, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? अरे देखो मैजिक, देखो मैजिक, क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये रैशनल हो गया। तो मेरे को इसको रैशनलाइज करना था, इसको रैशनलाइज करने के लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, √5 से, समझा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। तुमने जिससे मल्टीप्लाई किया ना, दिस इज कॉल्ड एज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। वंस अगेन अस्यूम देयर इज √3, मुझे इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनलाइज होएगा, √3. ठीक है। सो √3 को तुमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो बनता है √9, ठीक है, √9। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 बिकम्स 3. स्क्वायर रूट ऑफ 9 बिकम्स 3। 3. सो दिस रैशनलाइज हो गया। तो √3 तो मेरे पास क्वेश्चन में था, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो कौन है रैशनलाइजिंग फैक्टर इधर, इस सम में रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, √3, क्योंकि तुम्हें उससे मल्टीप्लाई करने के कारण रैशनलाइज हुआ, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ गया, क्लियर विद दिस। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फिर स्क्वायर रूट किया, इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, ये एक तरीका है समझने का, इसको और एक तरीके से समझना है ना, तो ये √5 into √5 यानी √5 का होल स्क्वायर। अभी हमने एक 4th लॉ पढ़ा था और मैंने कहा था वो 4th लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आगे समझेगा, अब समझ में आएगा वो 4th लॉ क्या था। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2. इधर ऑर्डर क्या है, 2. और इधर रेस टू क्या है, 2. अगर ऑर्डर और पावर सेम है, ऑर्डर और पावर सेम है, तो आंसर इज द टर्म इनसाइड। चेक करो, ऑर्डर और पावर सेम है तो आंसर इज द टर्म इनसाइड। क्या आंसर आया, 5। तो मैंने 2 तरीके से बताया, तुमने मल्टीप्लाई किया फिर स्क्वायर रूट किया, ये एक तरीका है समझने के लिए। जो तरीके से समझेगा, समझना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कोई रूल नहीं, सर ने बताया वैसे ही करना पड़ेगा, स्कूल टीचर ने ऐसा बताया ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई भी तरीके से समझो, ठीक है। दूसरा तरीका, मल्टीप्लाई किया तो √5 का होल स्क्वायर, ऑर्डर 2 है, पावर 2 है, आंसर इज द टर्म इनसाइड 5। लाइक यहाँ पे ये एक तरीका है। दूसरा, √3 into √3 का मतलब होता है √3 का होल स्क्वायर, 2 बार √3 है, √3 का होल स्क्वायर, ऑर्डर एंड पावर इज सेम, सो आंसर इज द टर्म इनसाइड। समझ में आ गया, Yes, sir. चलो ओके। अब मेरे को इसको रैशनलाइज करना है, इसको छेड़ने का नहीं। क्यों नहीं छेड़ने का, पहले से Already सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो, It is सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। ये √2 है, ये √2 है, इसको मुझे रैशनलाइज करना है,
इसको रैशनलाइज करना है, तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई, देन इट विल बी रैशनलाइज्ड Root 2. रूट 2। रूट 5 को क्या मल्टीप्लाई किया तो रैशनलाइज हुआ रूट 5। रूट 3 को क्या मल्टीप्लाई किया तो रैशनलाइज हुआ रूट 3। वैसे इसको क्या मल्टीप्लाई करूं, देयरफॉर Root 2. rationalizing factor is Root 2. अच्छा, ये तुमने समझा है, ये तुमने समझा पूरा। इसका ट्रिक क्या है, जो भी इधर टर्म आएगा ना वही तुम्हारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है, वो ट्रिक है। समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो तुमको नेक्स्ट सम में हेल्प करेगा, पर ट्रिक भी याद रखो। ट्रिक क्या है, ये जो इरेशनल टर्म दिख रहा है ना, ये इरेशनल टर्म दिख रहा है ना, वही तुम्हारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, आर यू क्लियर? Yes, समझ में आ गया? sir. अभी अपने टेक्स्ट बुक में जो सम्स है उस सब के लिए यही ट्रिक है। वैसे कुछ एक्स्ट्रा सम्स है जिसमें ये ट्रिक काम नहीं आता, बट फिर भी अभी तुमको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में टेक्स्ट बुक का ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यही तुम्हारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट रहेगा कुछ सीखने का, मैं अलग से बता दूंगा वो। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, रूट ऑफ 50। चलो पहले सिंप्लीफाई करो इसको। 5 से डिवाइड किया तो 10, 5 से डिवाइड किया तो 2। रुद्र म्यूट कर। ऑर्डर 2 है, 2 5 के नीचे लाइन ड्रॉ किया, 1 5 बाहर, रूट 2 अंदर। ये हो गया सिंप्लीफाई। नाउ टेल मी हु इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर हियर? Root 2. 2. इसको कुछ नहीं करने का, ये पहले से रैशनल है। इसको और क्या करोगे, ये पहले से रैशनल है, इसको कुछ मत करो, इधर ध्यान दो मुझे। इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, देन दिस विल बिकम रैशनल। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो आई विल राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 2। Root 2. नाउ नेक्स्ट, 3/5 रूट 10। टेल मी इसके फैक्टर्स 1 के सिंप्लीफाई होता है क्या? ये सिंप्लीफाई होता है क्या आगे रूट 10? Yes, sir. Yes, sir. होता है? Yes. बताओ क्या सिंप्लीफाई हुआ? 5 into 2. 5 into 2 में से कुछ बाहर आ रहा है क्या? No, sir. तो क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हो? टाइम वेस्ट। सिंप्लीफाई कब करते हैं, जब कुछ बाहर आएगा तब ना, अभी थोड़ी सिंप्लीफाई हो रहा है वो, तो सिंप्लीफाई होएगा ही नहीं। तो डायरेक्टली आंसर लिखने का है। बताओ इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है? Root 10. Root 10. Rationalizing factor is root 10. Now here, all these are like terms. Vedant Davi mute कर। All these are like terms. सब रूट 7 है, ये ना हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट एक छोटा सा ट्रबल है। ये ना, ये फ्रैक्शन है। मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में कर सकता हूँ, बट ये फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन वाले को एंड में टैकल करते हैं, पहले विदाउट फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करते हैं। Here, what is the coefficient of root 7? 1. Coefficient of root 7 is 1. What is the coefficient of root 7? 2. 1 plus 2 becomes 3. 3. 3. Root 7. easy? Yes. समझ में आ गया? ओके, मैंने फ्रैक्शन को एंड में टैकल करने के लिए रखा है। नाउ लेट्स सॉल्व द फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इधर कुछ नहीं है यानी 1 है और 5 है। 1 और 5 का एलसीएम बिकम्स 5। इफ एनीवन डजंट रिमेंबर एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम ऐसे सॉल्व करते हैं 1 और 5। जब तक सब कुछ 1 नहीं होता ना तब तक फैक्टर्स लिखते जाओ। ये पहले से 1 है, इधर बचा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, तो तुम्हारा एलसीएम क्या बन गया 5। 1 और 5, इधर नीचे 1 है इधर 5 है, कुछ नहीं यानी 1 होता है। 1 और 5 का एलसीएम इज 5। अब मेरे को इधर 5 लाने का है, यहाँ पे 1 है, इसको 5 बनाने का है। दिस इज द मेथड ऑफ एलसीएम। इसको 5 बनाने के लिए तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 है ना,
इसको 5 बनाने के लिए तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 5 से। तो एक्चुअल में तुमने 5 से इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, तुमने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 किया। तो तुमने एलसीएम 5 लाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 किया। ओके, अगर जिसको याद नहीं है ये प्रोसीजर्स, जिसका 8 का लोअर स्टैंडर्ड का बेसिक्स खराब है, मैं वापस बता रहा हूँ। देखो ये 3√7 यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, मेरे को इसका एलसीएम 5 आया, मेरे को इधर 5 लाने का। इसको 5 लाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 5 किया इधर नीचे। अब एक्स्ट्रा सीधा मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं होता है, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट आई हैव डन इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इसका डिनोमिनेटर पहले से 5 है। अब चेक करो 5 और 5 कॉमन डिनोमिनेटर इज 5, कॉमन डिनोमिनेटर इज 5, 5 3 जा 15√7 minus 3√7। कैन आई कैंसिल दिस टू? मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं कैंसिल ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नो सर। Sir. क्यों नहीं कर सकते? वेदांत दवे इधर देख, इसको कैंसिल क्यों नहीं कर सकते मालूम है? ये यहाँ पे डेंजर साइन दिख रहा है प्लस माइनस का, इसलिए नहीं कर सकते। अगर ये मल्टीप्लाई साइन होता मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। Now 15 minus 3, what is 15 minus 3? 12. Answer becomes 12√7 upon 5. ये मैंने पूरा मेथड एलसीएम का मेथड से बताया, पर ये इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई नहीं करने का। अब यही मेथड डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे करने का बता रहा हूं आगे जाके। नाउ यू पीपल आर इन 9th स्टैंडर्ड, प्लीज ये कोई बच्चों वाला मेथड अप्लाई नहीं करोगे, थोड़ा ग्रोन अप वाला मेथड अप्लाई करो। 1 और 5 का एलसीएम इज 5, सीधा लिखने का, ऐसे करने का जरूरत नहीं होना चाहिए, समझा? सीधा लिखने का 1 और 5 का एलसीएम इज 5, यानी तुमने डायरेक्टली ये स्टेप पे जंप मारा है। यहाँ पे 1 है, इसको 5 बनाने के लिए तुम क्या करोगे? इसको 5 बनाने के लिए क्या करोगे? तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 करोगे। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 तो आ गया 5 3 जा 15। चेक करो, मैंने सीधा जंप मारा है, सीधा इधर उड़ी मारा है, ठीक है? 15 minus 3 becomes 12√7 upon 5, ठीक है? एक और एक मेथड, that method is cross multiplication. Understand this method. एक फ्रैक्शन है और एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 3 जा, ये भी तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3 रहेगा, तो ये 3 इधर आता है, 2 इधर आता है, 3 2 जा 6 आता है, 3 इधर क्रॉस हुआ, 2 इधर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 2 3 2 जा 6, समझा? तो वही कर रहे हैं। 5 3 जा 15√7 minus 3√7, 5 into 1 5, 3 into 2 6 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 1 जा 2, ऐसे लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 5 3 जा 1 3 जा 1 into 5 यानी 5, ठीक है? अगेन आंसर इज 12√7 upon 5। मैंने 3 तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। तुम बोलोगे नहीं सर हमको सब समझ में आता है, सर ये वाला आसान है, सर ये वाला डिफिकल्ट है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखो। तुमको सब समझना जरूरी है, बिकॉज सर्टन सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस, सर्टन कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस, सो एवरी मेथड यू नीड टू नो एंड डोंट से सर ये क्या है, सर ये हमको आता है। नहीं, तुमको कितना भी आता है, एग्जाम में करते हुए तुम गड़बड़ करके आते हो, इसलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज मेथड्स। क्लियर? मैं जितना इजी और जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं आई एम ट्राइंग टू डू इट, बट इफ यू डोंट यूटिलाइज इट, डोंट सॉल्व इट, होमवर्क नहीं किया, सब वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक बताओ। तुम्हारा अभी टेस्ट कौन सा रखा हुआ है? कोई टेस्ट अरेंज किया है? Science 2. कभी है? Chapter. कभी है साइंस 2 का? Tomorrow. सॉरी, हाँ कभी है? Tomorrow. कल है ना? ठीक है। सो कल साइंस है, उसके बाद अपना सर्ड्स हो जाएगा, उसका टेस्ट रहेगा। क्लियर? Yes sir. इसलिए होमवर्क करके रखना। ओके, होमवर्क चेक होने वाला है, अभी तुम्हारा ऑनलाइन ही होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है? सो इसलिए होमवर्क करके रखना, डे टू डे होमवर्क करो। Yes sir. Yes sir. साइंस 2 का प्रिपेयर करके रखो। बाय। Bye sir. Thank you sir.